Good evening, friends, students. Welcome to the engineering thermodynamics. Okay, by me. In last session, we studied the syllabus of second year, that is semester 3, in which have 5 subjects that we defines. Okay, after that we start with the engineering thermodynamics subject, which have total 4 credits and having in semester examination, end semester examination. Okay, after that we discuss the syllabus of engineering thermodynamics. Okay, in each various units. Unit first is the fundamental of thermodynamics. Unit second is the second law of thermodynamics. Unit 3 availability, exergy. After that we show unit 4, that is the property of pure substance. Next, fuels and combustion. And next, steam generator. Okay, after that we start with the first unit, that is the fundamentals of thermodynamics. We define various definitions like thermodynamics, what is thermodynamics, what are the applications of thermodynamics. Okay, next we define the three definition, that is a system, surrounding, boundary. What is system? System is a region or matter upon which attention is focused for the study of work and heat transfer. Everything external to the system is surrounding, and system and surrounding separates by boundary. Okay, next we studied the classification of thermodynamic system. Mainly thermodynamic classified three types: open system, closed system, and isolated system. Okay, after that we defines what is closed system, what is isolated system, what is open system. Okay, in closed system only energy transfer, not mass transfer, so this is called as a closed system. So closed system is called as a non-flow system. Next we study isolated system. Isolated system, in isolated system no mass transfer, no energy transfer, that is thermos plus, no energy transfer, no mass transfer. After that we studied open system. Open system is a flow system, a system in which energy as well as mass transfer, that is called as a open system, that is energy in, energy out, mass in, mass out, system to surrounding. So it is called as a open system, also called as a flow system. Okay, after that we studied two definitions, that is a control volume and control system, control surface. What is control volume, what is control surface? A volume or region in which mass and energy flow takes place, that volume is called as a control volume, and that surface is called as a control surface, that is a control volume and control surface. Okay, last like session I give you an assignment. Okay, please complete it. Okay, we start with the next session, next lecture. Okay, next is the homogeneous system and heterogeneous system. What is homogeneous system and what is heterogeneous system? Okay, consider a system in which constant chemical composition throughout and physical structure. मीन्स व्हाट, आपका जो भी गैस है, सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो भी है, उसका केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर सब जगह क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम. अगर आपका केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज है सिस्टम के अंदर, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम. मतलब कंसिडर कर दो एग्जांपल, सिस्टम मैंने कंसिडर कर दी, उस सिस्टम में पूरा पानी है, वाटर है, तो वाटर क्या रहता है, थ्रू आउट सब जगह सेम है वाटर, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम है, फिजिकल स्ट्रक्चर सेम है, मतलब आपकी जो सिस्टम है वो क्या है, होमोजेनियस सिस्टम. अगर मैंने एग्जांपल ले लिया कि मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अभी आइस जो है वो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और वाटर कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में. मतलब आपकी जो सिस्टम है वो कौन से है, हेट्रोजीनियस, क्योंकि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम. ओके, समझ आ गया. होमोजीनियस मतलब कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन एंड हेट्रोजीनियस मतलब होमोजीनियस मतलब कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन और हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट chemical composition and physical structure, that is a homogeneous system and heterogeneous system. Next, thermodynamics studied basically two approach. First is the microscopic approach and second is a macroscopic approach. Okay, the word micro means small, macro means big. Okay, मतलब आप जब भी स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का, अगर आप
एकदम माइनर लेवल से स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम माइक्रोस्कोपिक। अगर थर्मोडायनेमिक स्टडी हम एवरेज लेवल पे चेक कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मतलब क्या है, सिस्टम के अंदर जो मैटर रहता है, ओके, वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, गैसेस रहेगा, उसमें मोलेक्यूल्स रहेंगे, बराबर है। अगर आप हर एक मोलेक्यूल का स्टडी करेंगे तो उस अप्रोच को हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अगर हर एक मोलेक्यूल का स्टडी करना है मतलब क्या हो गया, वो उसके कैलकुलेशंस ज़्यादा होंगे, हर एक मोलेक्यूल की आपकी प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब वो क्या हो गया, अप्रोच कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। मतलब देखो माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या है, एकदम माइनर लेवल पे हर एक मोलेक्यूल का स्टडी करना है, ओके। हर एक मोलेक्यूल का स्टडी करना है मतलब उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आएगी, हर एक प्रॉपर्टी आपको, हर एक मोलेक्यूल की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी, मतलब आपकी वेरिएबल्स ज़्यादा रहेंगे, बराबर है। उससे क्या होगा, आपको जो भी अप्रोच है, स्टडी है, वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड। ये मतलब क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या है, एवरेज अप्रोच। एवरेज अप्रोच मतलब क्या है, सिस्टम के अंदर जितने मोलेक्यूल्स है उस हर एक मोलेक्यूल को स्टडी नहीं करना, उस हर एक मोलेक्यूल से हम क्या करेंगे, एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे और उस एवरेज वैल्यू को हम क्या करेंगे, स्टडी कर देंगे। मतलब उसके कैलकुलेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपल रहेगा, ओके। और जो सिस्टम की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है वो हमें हर एक मोलेक्यूल की नहीं करनी है, सिर्फ एवरेज डिफाइन करना है, मतलब प्रॉपर्टी भी ज़्यादा नहीं लगने वाली है। तो हमारी जो प्रोसेस है, अप्रोच है, वो क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। देखो हमने कंपेयर कर दिया है मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब एवरेज, माइक्रो मतलब स्मॉल, ओके। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच इज आल्सो नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। मतलब जो भी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं उस अप्रोच को हम बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। अगर हर एक मोलेक्यूल को हम स्टडी करते हैं तो उस अप्रोच को बोलते हैं स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, ओके। अभी मैक्रोस्कोपिक में हमें क्या लगता है, रिक्वायर सिंपल फॉर्मूले, क्योंकि एवरेज स्टडी करना है इसलिए हमें सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूले लगने हैं, ओके। बट माइक्रोस्कोपिक में क्या है, हर एक मोलेक्यूल को स्टडी करना है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूले क्या होगी, आपकी ज़्यादा लगेगी, बराबर है। अभी मैक्रोस्कोपिक में जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए मोलेक्यूल्स की वो एवरेज बेसिस पर लिखनी है, मतलब रिक्वायर हमें प्रॉपर्टी जो चाहिए कम लगने वाली है। बट माइक्रोस्कोपिक में हम हर एक मोलेक्यूल की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मतलब वेरिएबल ज़्यादा होगी तो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टी लगेगी आपको, ओके। तो माइक्रोस्कोपिक जो अप्रोच है वो क्या है, सिंपल है क्योंकि एवरेज बेसिस है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो है वो स्मॉल है, इसलिए हमें क्या चाहिए, उसका complicated process है, okay। This is the microscopic that is the statical thermodynamics and classical thermodynamics, okay। मैक्रो मीन्स क्लासिकल, माइक्रो मीन्स स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, ओके। आपको पूछा जाता है राइट डाउन द कंपैरिजन बिटवीन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो मीन्स स्मॉल मोलेक्यूल, ईच मोलेक्यूल बेसिस, मैक्रो मीन्स बिग दैट इज एवरेज बेसिस, ओके। नेक्स्ट देयर इज द बेसिक डेफिनेशंस। फर्स्ट इज द स्टेट। अभी स्टेट मतलब क्या है, हम स्टेट को किसे डिफाइन करते हैं। अभी देखो आप एक जगह बैठे हैं तो आपकी क्या हो गई, स्टेट हो गई। तो स्टेट में आपको किसे डिफाइन करूँगा, तो आप जहाँ पे बैठे हैं, तो आप चेयर पे बैठे तो आपका प्रेशर कितना है चेयर पे, आपका वेट कितना है, आपका टेम्परेचर कितना है, मतलब वो उस पॉइंट का क्या हो गया, आपकी स्टेट हो गए, बराबर है। तो स्टेट मतलब क्या होगी, आपकी वो कंडीशन हो गई, आप जहाँ बैठे हैं वो मैंने कैसे डिफाइन कर दिया, तो प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेट वगैरह, ये क्या हो गई, आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। उससे मैंने आपकी क्या कर दी, वहाँ पे डिफाइन स्टेट कर दिया। अगर आप खड़े हो गए तो आपकी स्टेट अलग हो जाएगी, ओके। आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बराबर है। तो ये क्या हो गया, आपकी दूसरे टाइम की स्टेट हो जाएगी, बराबर है। तो स्टेट मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज कंडीशन ऑफ सिस्टम। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कंडीशन, जिस कंडीशन में आप, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एट पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब क्या है, आप जहाँ पे बैठे हैं उस मोमेंट की कंडीशन ऑफ सिस्टम एट अ पर्टिकुलर मोमेंट विच इज़ डिस्क्राइब्ड बाय प्रॉपर्टीज़। मैंने क्या किया, आपकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की, आपका वेट, वॉल्यूम, ओके, प्रेशर, टेम्परेचर, ये क्या कर दी, प्रॉपर्टी से क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। सच एज अ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ द सिस्टम, ओके। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एट अ पर्टिकुलर मोमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड बाय प्रॉपर्टी सच एज अ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एट्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ द सिस्टम। समझ गए। जब देखो अभी आप बैठे हैं तो आप
का वो क्या हो गई, स्टेट हो गई। तो मैंने कैसे डिफाइन कर दिया, आप बैठे हैं तो आपका वॉल्यूम इतना है, मास इतना है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है एट दिस टाइम। ओके, अगर आप खड़े होंगे चाहिए 10 मिनट बाद, तो आपके 10 मिनट के बाद जो प्रेशर रहेगा, टेम्परेचर हो, वो क्या हो गया, आपकी दूसरा स्टेट हो जाएगी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट। अभी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब क्या है, और इस प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया, स्टेट को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, आपको प्रॉपर्टी चाहिए। ओके, तो प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम मे बी आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब्ड बाय सच अ ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल। मतलब क्या है, मैंने अभी आपकी स्टेट बताई, स्टेट मतलब क्या बताया, प्रेशर, प्रेशर मेजर करने के लिए मुझे प्रेशर इंस्ट्रूमेंट लगेगा, वॉल्यूम मेजर करने के लिए मैं वॉल्यूम से मेजर करूँगा, देखने के बाद मुझे हाइट पता चल रही है, मतलब ऑब्जर्व करके और सम मेजर करके मैंने क्या कर दी, प्रॉपर्टीज़, क्वांटिटीज़ डिफाइन कर दी, उसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, स्टेट ऑफ द सिस्टम में भी आइडेंटिफाई, मतलब आप जहाँ बैठे उसको मैंने आइडेंटिफाई किया और डिस्क्राइब किया, कैसे किया, बाय ऑब्जर्व करके, मेजर करके क्वांटिटीज़, कौन सी क्वांटिटीज़, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ओके, डेफिनेशन कैसी बताई मैंने, द स्टेट ऑफ सिस्टम may be identified or described by certain observable and measurable quantities such as volume, temperature, pressure and density etc. These quantities are called as a property of system। समझ गए, स्टेट और प्रॉपर्टी। स्टेट मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ सिस्टम, मतलब मैंने एक सिस्टम कंसिडर कर ली, उस सिस्टम के अंदर अगर कोई भी मैंने कंप्रेसर ले लिया, अभी कंप्रेसर के अंदर प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, कंप्रेसर का वॉल्यूम कितना है, मतलब ये कंप्रेसर के क्या हो गई, अभी की कंडीशन हो गई। जब मैं कंप्रेसर ऑपरेट करूंगा तो कंप्रेसर का अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, तो वो क्या होगी, आफ्टर दैट कंडीशन ऑफ द सिस्टम। ओके, दिस इज द स्टेट एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ओके, तो दो डेफिनेशन हो गया, स्टेट एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। Okay, there are two types of thermodynamic properties: intensive property, extensive property. Okay, intensive and extensive, I stands for independent. Okay, ध्यान में रखिए, एक्सटेंसिव में ई आ रहा है और इंटेंसिव में आई आ रहा है। ओके, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में सिर्फ इतना डिफरेंस है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम। मैं क्या बोल रहा हूँ, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट, आई स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव, आई स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट, द प्रॉपर्टी विच independent on mass of the system is called as a intensive property। ओके, तो डिफरेंस क्या है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में, एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टी है वो मास के ऊपर क्या है, डिपेंड है, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, मास पर डिपेंड नहीं है। एक्सटेंसिव मास पर डिपेंड है, इंटेंसिव मास पर डिपेंड नहीं है, दैट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी देखो, मैंने यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखी है, द प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन मास। ओके, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, द प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन से है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी। ओके, अभी थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, मैंने एग्जाम्पल दिए, आपको कैसे समझ आ जाएगा इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखो, एक मैंने ब्लॉक लिया है, एग्जाम्पल देखो, ब्लैक बॉक्स में एक बॉक्स लिया है, उसके प्रॉपर्टीज़ देखो, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी दिया है। उस बॉक्स को मैंने नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 सेक्शन में। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जो बॉक्स है उसका मास भी हाफ आ जाएगा, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, बराबर है। लेकिन बॉक्स को आधा आधा डिवाइड करने के बाद फिर भी उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कैसे, आपके 2 रूम हैं, ओके, 2 रूम का मास इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, डेंसिटी एक कैलकुलेट कर दी। अगर 2 रूम को मैंने सेपरेट कर दिया तो मास क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन इस रूम का टेम्परेचर उस रूम का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस रूम में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, उस रूम में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। इस रूम में भी डेंसिटी ऑफ एयर सेम रहेगी और उस रूम में भी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ एयर सेम रहेगी। मतलब क्या है, मास और वॉल्यूम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मास ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड है।
सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी जो कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, इनडिपेंडेंट ऑन द मास, सो इट इज कॉल्ड एज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ गए? इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, extensive property, the property which depends on mass of the system, that is in extensive property. एग्जाम्पल, ऑल एनर्जीज, जो कुछ एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम, मास, ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज प्रॉपर्टी एंड राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी और टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। और ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि आपको प्रॉपर्टीज दिए जाते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, और उसमें लिखा जाता है कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने पूरे एग्जांपल डाल दिए, कौन सी भी प्रॉपर्टी आ जाए तो आप प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हैं। तो एग्जांपल अच्छे से पढ़ लिए, टाइप्स अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, अभी नेक्स्ट है स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने नीचे लिखा है थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी एक्सटेंसिव मतलब क्या हो गया? डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम। स्पेसिफिक मतलब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक मतलब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने ली वॉल्यूम, ओके, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम पर यूनिट मास। ओके, अगर मैंने उसको मास से डिवाइड कर दिया तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। स्पेसिफिक मास क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। स्पेसिफिक एनर्जीज क्या होंगी? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे दिखा है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एनर्जी। ओके, समझ गए? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑन मास, extensive property depends on mass. Okay, all specific properties of extensive properties are called as a intensive property. Okay, आपका स्टेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। ओके, नेक्स्ट, अभी नॉर्मल 3 डेफिनेशंस आपको पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन विथ पीवी डायग्राम व्हाट इज पाथ, व्हाट इज अ प्रोसेस एंड व्हाट इज अ साइकिल। ओके, आपको आईसी इंजन, सॉरी एसआई इंजन, सीआई इंजन आपने पढ़ा होगा। ओके, इंजन में क्या होता है? एक सिलेंडर रहता है। सिलेंडर अंदर क्या रहता है? अगर एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या है? गैस है। ओके, ऊपर से मैंने क्या लिया? एक पिस्टन लिया। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, देखो 1 to 2 पोजिशन दिखाए मैंने। ओके, यहाँ पे क्या है? जो आपका टी शेप है वो उसको बोलते हैं पिस्टन। ओके, और अंदर जो है वो क्या है? डॉटेड लाइन से दिखा है, वो अंदर है गैस। ओके, अभी पहले पिस्टन मैंने कंसिडर कर दिया सेकंड पोजीशन पे है। कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन होगा तो आपका जो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा, और प्रेशर क्या है उसके अंदर का? कम है। मतलब जो यहाँ पे देखो पीवी डायग्राम, बी डायग्राम में सेकंड पोजीशन में क्या है? आपका प्रेशर कम है और वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया? उस पिस्टन को जोर से कंप्रेस कर दिया। गैस को क्या कर दिया? मैंने कंप्रेस कर दिया, मूव कर दिया डायरेक्टली 2 से कहाँ लग गया? 1 में। पहले तो जो सिस्टम थी, सिस्टम कहाँ थी? पहले सेकंड पोजीशन पे थे। ओके, सेकंड पोजीशन में आपका प्रेशर कितना था? कम था। वॉल्यूम कितना था? ज़्यादा था। तो सेकंड पोजीशन इज द क्या हो गई? आपकी कंडीशन ऑफ द सिस्टम, इक्विलिब्रियम सिस्टम थी वहाँ पे। ओके, जब मैंने पिस्टन को पुश कर दिया अंदर की तरफ, कहाँ तक पुश किया? 1 के पॉइंट तक पुश कर दिया। तो 1 पॉइंट के तब पुश करेंगे तो सिलेंडर के अंदर का जो गैस है वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेस हो जाएगा। कॉम्प्रेस हो गया मतलब क्या हो गया? उसका प्रेशर बढ़ गया। क्या हो गया? प्रेशर बढ़ गया। लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया? सिलेंडर का आपका अंदर का कम हो गया। गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। तो हमें जो ऊपर वाला पॉइंट मिल गया पी वी का, वो फर्स्ट पॉइंट मिल गया। उसमें क्या हो गया? आपका प्रेशर ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम क्या है? कम है। ओके, तो आपकी जो प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ जा रही है? 2 से 1 तक जा रही है। मतलब 2 आपका जिसमें क्या है? आपका प्रेशर कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है, और 1 पॉइंट जो है वहाँ पे क्या है? आपका आफ्टर कंप्रेशन प्रेशर बढ़ गया और वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो पाथ में क्या रहता है? अगर मैंने पिस्टन को
थोड़ा अंदर पुश किया तो क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा ही आपका प्रेशर बढ़ेगा और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा, कम हो जाएगा। थोड़ा सा और पुश कर दिया और थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा और थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से 1 पॉइंट तक जाने तक मैं क्या कर रहा हूँ, हर थोड़ा थोड़ा माइन्यूट लेवल पे क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं हुआ, मैंने डायरेक्टली 2 से पिस्टन डायरेक्टली 1 तक नहीं लिया। मैंने क्या किया, 2 से थोड़ा सा पिस्टन आगे मूव कर दिया, ओके। फिर इक्विलिब्रियम स्टेट आने दी, फिर थोड़ा सा मूव किया, फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट आने दी, फिर थोड़ा सा अंदर मूव कर दिया। ऐसे करते करते मैं कहाँ तक चला गया, फर्स्ट पॉइंट तक चला गया। मतलब वो जो मैंने पाथ फॉलो की, पॉइंट्स सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट फॉलो की, उसको क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। देखो मैंने डेफिनेशन लिखी है, व्हेन अ सिस्टम पासेस थ्रू कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट देन इट इज़ नोन एज द पाथ ऑफ सिस्टम। मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, आपने बलून फुगाया है, ओके, बलून फुगाया तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है अंदर, बराबर है। फिर मैंने क्या किया, बलून से थोड़ी सी एयर बाहर निकाली, फिर बलून को बंद कर दिया, फिर फर्स्ट पॉइंट मिल गया मुझे सिस्टम के अंदर का, ओके। फिर से एयर छोड़ दी, फिर बंद कर दिया, फिर मुझे नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा, फिर से एयर छोड़ दी, फिर मुझे नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। ऐसे करते करते मैंने पॉइंट्स सिस्टम के निकाल दिए और उस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, तो वो जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, पाथ ऑफ द सिस्टम, ओके। व्हेन अ सिस्टम पासेस थ्रू कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ इनिशियल टू फाइनल। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रेशर कम है, और फाइनल स्टेट क्या है, जहाँ पे हमारा प्रेशर ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है, ओके। 2 से 1 तक जाने में मैंने क्या किया, कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो किया, ओके। देन दिस कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट फॉलो किया, उसको हम बोलते हैं पाथ, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ओके। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन लिया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हेन अ सिस्टम चेंजेस इट्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, then path of successive state through which system has passed is known as a thermodynamic process, that is called as a path. Next is a thermodynamic process, okay। आपको समझ गया पाथ, पाथ मतलब क्या है, हर स्टेट को अगर मुझे यहाँ से कंसिडर करते हैं, मुझे जाना है अपने कॉलेज से बीजीएस तक, ओके। डायरेक्टली मैं दौड़ के चला गया, कहीं रुका ही नहीं, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट कहाँ था, कॉलेज था, और डायरेक्टली पॉइंट सेकंड कहाँ था, बीजीएस तक था, ओके। पहली कंडीशन मेरी अपने कॉलेज की थी और फाइनल कंडीशन कहाँ थी, बीजीएस पे थी, ओके। तो ये हो गया। अभी मुझे पाथ करना है तो मैं क्या करूँगा, कॉलेज से गेट तक जाऊँगा, गेट से आगे जाके दुकान तक जाऊँगा, फिर दुकान से आगे राधेश्वरी नगरी तक जाऊँगा। ऐसे मैंने थोड़े थोड़े स्टेप पे जाके रुक गया, वहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया, और फिर ऐसे करते करते मैं कहाँ तक चला गया, बीजीएस तक चला गया। तो मैंने कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट फॉलो किए, तो उसको मैं बोलूँगा पाथ ऑफ द सिस्टम, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ओके। आपको समझ गया पाथ प्रोसेस। अभी लास्ट डेफिनेशन जो है वो है आपकी साइकिल। साइकिल देखो, साइकिल का टायर कैसे रहते हैं, सर्कल रहती है, ओके। अगर एक पॉइंट से स्टार्ट कर दिया तो फिर वो वहाँ से घूम के आ जाएगी, उसी पॉइंट पे आ जाएगा, बराबर। मतलब क्या है, मैंने कंसिडर कर दिया, आपको एग्जांपल दिया था, कॉलेज से बीजीएस तक जाना है, ओके। तो मैंने क्या किया, कॉलेज से बीजीएस तक जाने के लिए मैंने एक रूट से चला गया, ए रूट से, फिर दूसरे बार बीजीएस से मुझे कॉलेज आना है तो मैं फिर घूम के कहाँ से गया, लूनीगंज से पीछे की तरफ से कॉलेज आ गया, ओके। मतलब मेरी जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल। मतलब क्या है, देखो मैंने पहली प्रोसेस जो है वो कैसे फॉलो की, अपने कॉलेज से बीजीएस तक बकोरी रोड वाया गया, मतलब ये मेरी पहली प्रोसेस थी। दूसरी प्रोसेस कैसी थी, बीजीएस से मैंने लूनीगंज, और लूनीगंज से फिर क्या कर दिया, पीछे से मैंने क्या किया, कॉलेज तक आ जाएगा। ये मेरी क्या थी, दूसरी प्रोसेस थी। और दोनों प्रोसेस कंप्लीट करके मैं कहाँ आ गया, कॉलेज में। मतलब इनिशियल कहाँ था, मैं कॉलेज पे ही था, फाइनल कहाँ पे हूँ, कॉलेज में ही हूँ। मतलब क्या हो गया, ये मेरी साइकिल कंप्लीट हो गई, ओके। साइकिल कंप्लीट करते वक्त मुझे कितने प्रोसेस आ गए, 2। पहली प्रोसेस कहाँ थी, बकोरी रोड से बीजीएस गया। दूसरी प्रोसेस कौन थी, लूनीगंज से कॉलेज तक आ गया, बराबर है। मतलब क्या है, मैंने ऐसे प्रोसेस परफॉर्म की कि
आपकी जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट थी वो क्या होगी, आइडेंटिकल टू फाइनल स्टेट, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो गई आपकी, सेम हो गई। उसके लिए मैंने क्या की, 2 प्रोसेस ऐसे परफॉर्म किए। आप 3 प्रोसेस यूज कर सकते हैं, 4 प्रोसेस यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है, पहले प्रोसेस में ये कॉलेज से कहाँ चला गया, बीजेएस तक चला गया। दूसरे प्रोसेस में क्या किया मैंने, बीजेएस से लोनीगंज चला गया। तीसरे प्रोसेस में क्या कर दिया, लोनीगंज से मैं क्या आ गया, कॉलेज के इधर ईस्ट साइड वाला चौक कौन सा है, बकोरी गांव चला गया। और चौथे प्रोसेस में मैंने क्या किया, बकोरी से अपने कॉलेज में गया। फिर जो लास्ट पॉइंट मिला, मतलब कौन सा मिला, कॉलेज का। इनिशियल पॉइंट कौन सा था, कॉलेज का। मतलब ये 4 प्रोसेस मैंने कनेक्ट करने के बाद मैं कहाँ आ गया, कॉलेज पे ही आ गया। बराबर है, मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या हो गई आपकी, सेम हो गई। दैट इज कॉल्ड एज अ साइकिल। मतलब क्या है, व्हेन अ प्रोसेस आर परफॉर्म्ड ऑन अ सिस्टम इन सच अ वे दैट फाइनल स्टेट is identical to initial state, that is called as a thermodynamic cycle. Okay, समझ गए? Okay, this is the thermodynamic process path cycle. path मतलब क्या है, continuous series of equilibrium state. ओके, एंड प्रोसेस मतलब क्या, वो पाथ फॉलो करता है, उसको प्रोसेस बोलते हैं। और साइकिल मतलब क्या है, आपकी ऐसे प्रोसेस परफॉर्म करने हैं जिससे आपकी इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मोडाइनेमिक साइकिल। ओके, ठीक है, इतना ही आज के लिए करते हैं। आपको अभी असाइनमेंट कौन सी है, तो आपको मेनली असाइनमेंट्स है, तो डिफाइन द टर्म्स स्टेट, प्रॉपर्टीज, okay, cycle, process, path, and classify the system, classify the state, property, intensive property, extensive property with example। ओके, ये आपको असाइनमेंट एज अ कंप्लीट करना है। समझ गए?